morning students of Saraswati Vidya Mandir. Once again, in previous video we are dealing political environment, and we see that what are components which is consist by political environment. Now we are on significant effect of political environment. Political environment का प्रभावपूर्ण महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है? तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऐसे तो बहुत फ्यू इफेक्ट्स दे आर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बट फर्स्ट इज पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर एडवर्सली इफेक्ट confidence of investors and reduce the level of investment in the economy. The first important significant effect of political environment that is when in any economy there is political unrest or political instability or a political threat, then it leads to be adversely effect of law and order and confidence of investors towards their future prospects and towards their profit, and thus it reduce the level of investment in the economy. Thus it is very important for a good political environment, it is very important that there must be a political stability which fulfill the faith of investors in investment and also ensure their selves regarding the business process and the profit making and future prospects and future prediction. Then only investor can invest. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का सबसे पहला a good political environment, the first prime need of good political environment is to gain political stability anyhow. Then only investor can sow faith towards that economy and they make a lot of investment. The next is decision regarding offering subsidies to the producers give a boot to such industries. पॉलिटिकल बिकॉज एज वी नो दैट कि किसानों का ऋण माफ करने का डिसीजन कौन लेता है? सरकारें लेती हैं, केंद्र की चुनी हुई सरकारें लेती हैं. जीएसटी, टैक्सेशन या किसी भी तरह की सब्सिडीज जो है विच इज गिवन टू द प्रोडक्शन सेक्टर बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, दैट ऑल डिसीजन वर टेकन बाय गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स. इन सच सिचुएशंस डिसीजन रिगार्डिंग ऑफरिंग सब्सिडीज, अगर पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट वर मच willingness towards economic development, then that particular government can provide a lot of subsidies to major industries and to necessary goods production industries, and that those subsidies not only can boost the investment towards from the businessmen in and also it facilitates the overall business process and practices in an economy. Thus it is very significant effect of political environment. हम यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि किसानों के कर्ज माफ का क्या इम्पैक्ट होता है. किसानों के कर्ज माफ का कमलनाथ ने सहारा लिया, यूपी में सहारा लिया गया और वहाँ पे सरकारें बन गई. तो इसी तरह से यू कैन इमेजिन कि वेन एवर गवर्नमेंट गोइंग टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू मेजर इंडस्ट्रीज towards their developmental process and towards their setup of new branches to increase production, regarding all that, so that much boost as that act as a catalyst towards industrial development and industrial process. So this is the very important significance of political environment. Now we came over last environment, last dimension of business environment, which is legal environment. Legal environment क्या है कि सिंपल इन मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कानूनी आपका वातावरण है या लीगल इन्वायरमेंट है, उसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बिहार में जल्दी सड़कें निर्माण नहीं होती है, क्योंकि पहले तो आपको ये टेंडर लेने के लिए आपको घूस देना पड़ता है. फिर अगर टेंडर मिल गया तो बहुत सारे आपको यहाँ पे गुंडा एलिमेंट हैं या जिसको आप कहते हैं अनसोशल एलिमेंट, उनको फिर हिस्सा देना है. तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर नहीं तो फिर मर्डर कर दिए जाते हैं. बहुत सारे चर्चित हत्याकांड भी हैं.
इसके पीछे। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका बहुत इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वो लागू नहीं होता है, तो वहाँ पर बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने से हिचकेंगे, वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे वो डेवलपमेंटल प्रोसेस और फ्यूचर प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए बिहार आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बिहार आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रिगार्डिंग लीगल एनवायरनमेंट। और लालू राज में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ जंगल राज कहा जाता था और जिसके कारण उद्योग धंधों का विकास प्रभावित हुआ। तो लीगल एनवायरनमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड इट्स फ्यूचर प्लान्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। लीगल एनवायरनमेंट इट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्रीज। ये देश के रूल्स, रेगुलेशन, कानूनों को अपने आप में सम्मिलित करता है। दीज लॉज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, और इन कानूनों को सरकार के द्वारा लागू किया जाता है थ्रू कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के द्वारा, लेबर एक्ट के द्वारा, फैक्ट्री एक्ट के द्वारा, एंड इट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेस। एंड ये जो कानून लागू किए जाते हैं सरकार के द्वारा, फैक्ट्रीज एक्ट के रूप में, कारखाना अधिनियम के रूप में, कंपनी अधिनियम के रूप में, लेबर लॉज के रूप में, दीज आर much important, has a great importance towards business enterprises, because only on those basis, on rules and regulation, a business can develop its premises, and also diversified development of business can be ensured. Now the significant effect of legal environments. Legal environment का significant effect क्या है? देखिए, legal environment का significant effect ये है कि उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार, उपभोक्ताओं को जानकारी होनी चाहिए, हानिकारक वस्तुओं से बचाव होना चाहिए, और किसी भी तरह से उपभोक्ता ठगे नहीं जाए, चाहे वो कीमत के संबंध में हो, वस्तुओं की क्वालिटी के संबंध में हो, क्वांटिटी के संबंध में हो, और उनके हानिप्रद प्रभावों के संबंध में हो। और इसका यही इंपॉर्टेंस है कि आप देखते हैं कि दी एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड विच अफेक्ट द मार्केटिंग ऑफ सच प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो शराब है या अल्कोहलिक है, उन सबको हम लोगों ने लीगली प्रोहिबिटेड किया है, या उसके सेल्स को हमने बहुत, या मार्केटिंग को हमने बहुत ज्यादा रूल और रेगुलेशन से रेगुलाइज किया है कि यू मस्ट हैव टू give the advertisement regarding its bad effects on print media, paper media, electronic media, etc. You have to be aware also with the production of that particular product on one hand. On the other hand, you also have to be aware peoples to stop the consumption of these types of bad things because it is injurious to your health. तो दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैकेज पर इस सब की सूचना, ये सबको लिखना, तो ये है लीगल एनवायरनमेंट का प्रभाव और महत्व। प्रोडक्ट लाइक टोबैको एंड सिगरेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन देयर पैकेजेस। जैसे सिगरेट हम देखते हैं या टोबैको देखते हैं, तो उनके पैकेट पर ये सब वार्निंग लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, stop chewing of tobacco is injurious to health, not for minors। तो ये सब जो है, ये सब उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उनको ऐसे उत्पादों की हानिप्रद प्रभावों से बचाने के लिए ये सब जो है। एंड इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज a strong legal environment prevails in any economy. If this type of environment, अगर लीगल एनवायरनमेंट आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, देन इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ जहरीली शराब पीने से और बहुत सारे चीज़ों से कई लोगों की मृत्यु हो जाए, बहुत हानिकारक चीज़ों का। तो अभी जैसे कि हमने देखा है कि वो गैस कांड हुआ है, भोपाल से भी बड़ा गैस कांड तिरुवनंतपुरम में हुआ है, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो लीगल एनवायरनमेंट के कारण ये सब कम होता है, क्योंकि दे हैव टू बी, क्योंकि वो दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा नहीं होता तो आए दिन ऐसे बहुत सारे कांड हमारे देश में विभिन्न उद्योग समूहों के द्वारा हो सकते थे। दे कैन मिस्टेक एंड और इन सब का खामियाजा लोगों को अपनी जान से देना पड़ता। तो
ये है हमारे 5 इन्वायरमेंट. नाउ वी आर कम ऑन शॉर्ट अप दिस इन्वायरमेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. हमने पहले तो बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है. इट इज aggregative of totality of external forces which is neither controlled by business organization nor its manager. It is all outer forces and on which the business prospects and business dimension much depends. तो इन बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 डायमेंशंस की हमने चर्चा की. उसके बाद हमने बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की चर्चा की कि बिजनेस इन्वायरमेंट के लाभ और इसके सिग्निफिकेंट क्या है. आफ्टर दैट वी डिस्कस द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और इसमें हमने 5 बिजनेस इन्वायरमेंट डायमेंशन को हमने डील किया है. लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. और इन सब को डील करने के बाद अब हम लोग इनके बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे डायमेंशन को समझ चुके हैं. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज इंडियाज बिजनेस इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. भारत के व्यावसायिक पर्यावरण वातावरण और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर्थिक पर्यावरण या वातावरण का हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस 5 डायमेंशन के लिहाज से भारत का बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है. टिल देन आप लोग को इसका नोट्स बना लेना है. ऑल्सो रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड also make your notes in homework copy and must have to be send their photos on WhatsApp group of your subject teacher and class teacher also. और सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना कि सभी कोई अनिवार्य रूप से जल्द अपने इनरोलमेंट को करा ले क्योंकि इट्स 9-10 मई होने जा रहा है और अब काफी लेट हो चुका है. क्लासेस आपके चल रहे हैं ऑनलाइन. हमको नहीं लगता है कि कोई असुविधा है और ये कोरोना सबके लिए है, लेकिन इसमें आपको एडमिशन अपना डिले करने में कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है. इसलिए कृपया करके जल्द से जल्द आप इनरोल्ड हो जाएं. सभी 12C के बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि वो जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट कर ले प्लीज. टिल देन बाय.